सो आज कंपैरेटिवली न्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों का जो पेंडिंग काम था, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द स्लाइड्स compiled in just one class. So that is Supreme Court has mandated timeline for the presidential action on state bills, Article 201. Why in news? In the article, in the landmark judgment, Supreme Court has mandated 3-month deadline for the President of India to act on bill reserved for the state governors under Article 201, resolving the long-standing constitutional ambiguity. अब अभी तक क्या था, अभी तक का जो प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता था. अब नाउ द पॉइंट इज देयर वाज कैन से द कंपटीशन वाज देयर बिटवीन स्टेट एंड गवर्नर. So whenever the state government passed the bill and governor belongs to the other party, normally from the ruling party of the central government, and normally the governor, because of this their political rivalry, so governors normally reserves the bill for the presidential reconsideration. So they reserve the bill for presidential reconsideration, and president is not bound to give answer within a limited time frame. So that is there is no foundation on the president that in how many days he have to give answers. So Supreme Court has made mandatory that president have to give answer within a limited time frame. That is that is the 3 months deadline. Now the point is Supreme Court has directed or the President of India that give answer or give assent or give answer on the bill within 3 months. That is the deadline time. If the governor has sent bill to the President of India, then President of India is bound to sign on that particular bill. जो भी उसके रिजर्व किया गया है, President of India has to sign the bill. Governor bill sign करके President के पास भेजेगा और President उसके sign करने के लिए bound है. What happens in last few days, few years specifically, the tension between governor and the state government has risen. उसके पीछे जो भी रीजन हैं, दैट इज बेसिकली द रीजन इज पॉलिटिकल. और गवर्नर नॉर्मली बिल जो है स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, गवर्नर बिल को रिजर्व कर लेगा, देन ही विल रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द पॉइंट इज एज वी हैव डिस्कस, प्रेसिडेंट डू नथिंग. प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाउंड नहीं होता, प्रेसिडेंट आंसर करने के लिए बाउंड नहीं होता, स्पेसिफिकली ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव बिल. तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास 2-2, 3-3, 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक पेंडिंग पड़े थे, प्रेसिडेंट आंसर नहीं करता था. स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा से पास करके भेजती थी, गवर्नर फिर उसको रिजर्व कर लेता, फिर प्रेसिडेंट के पास भेज देता था. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट मैंडेटरी दैट फिनिश द बिल और आंसर द बिल विद इन 3 months. तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिल के ऊपर अपना आंसर करना है. So what the Article 201 says, allow the governor to reserve a bill passed by state legislature for the president's consideration. President के लिए bill reserve हो सकता था. However, no timeline is specified by the constitution for president's assent or rejection. As we have discussed, there is no timeline. कोई time frame नहीं था. President कितने भी प्रेसिडेंट कितने भी दिनों तक बिल को अपने पास रिजर्व कर सकता था. नो बेटा, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट है. द डीपीएसपीस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द डीपीएसपीस. तो इट इज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 201 स्पेसिफिकली. सो अलाउज अ गवर्नर टू रिजर्व द बिल. 201 के अंदर गवर्नर के लिए ये मैंडेटरी था, ये गवर्नर की पावर थी दैट ही कैन रिजर्व द बिल. उसको कोई किसी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं था. However, no timeline is specified in the constitution for presidential assent or rejection. The vagueness has led to the delays with state bill often stuck indefinitely, raising center state tensions. तो center state के अंदर ये जो weakness थी, इसकी वजह से center state relation जो थे हमेशा constraint रहते थे. The Tamil Nadu case triggered the judicial intervention. November 2023, Tamil Nadu Governor R.V. Ravi reserved 10 state bills despite their repassage by the state assembly. Petition filed challenging this as arbitrary and politically motivated. Supreme Court bench Justice J.B. Pardiwala and R. Madhavan साहब जो इस केस के साथ जुड़े हुए थे, तो they have directed कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर आंसर कर दे. तो की वर्डिक्ट हाइलाइट्स क्या हैं? गवर्नर्स एक्शन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट आर नॉट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी. डिलेज इन असेंट वायलेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फेडरल प्रिंसिपल्स. व्हाट इज द बेसिक थीम? दैट if president of India or governor of the state delays the bill, it violates the democratic values and federal principles. Federal principle, what the federal principle says, what is federalism? Federalism means there are the two bodies, central government और state government दो अलग अलग हैं, they are both are independent to each other. उनका आपस में कोई लिंक नहीं है दोनों के बीच में.
and it means central government is not the supreme authority over the state. So they are independent they are independent authorities, and they work independently, separately, and both have their own power. Central government has its own power, state government के पास अपनी powers है, दोनों के पास अपनी अपनी power होंगी और दोनों independently काम करेंगी. Although इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है, द पॉसिबिलिटी इज देयर. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द गवर्नर्स फॉर द स्टेट. हालांकि ये अमेरिकन फेडरलिज्म के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट इंडियन फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करता है, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो वहां व्हाट इट सेज, it violates that values of yani federal system. So 3 months deadline, what is the court said? President must act within 3 months for receiving the bill. It delayed, the central must provide reason for concerned state. The court cited 2016 MHA office memorandums on legislative efficiency, Sarkariya Commission 1983 and Panchi Commission 207 reports. Both recommendations are clear timelines. अब यहाँ पे दोनों में, सरकारिया कमीशन में भी और पंची कमीशन में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. दोनों कमीशन को व्हेन एवर वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट, तो उसमें डिस्कस करते हैं सरकारिया कमीशन पंची कमीशन दोनों रिकमेंडेशंस के अंदर ये आया था कि ये जो रिकमेंडेशन थी कि क्लियर टाइमलाइन होना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर बिल पास होके वहां पर पहुंच जाएगा. यानी कि बिल अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल के ऊपर साइन कर देगी. बिल स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली लॉ बन जाएगा. जब भी ऐसा कहीं लगेगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेकंड बेटा, हाँ, जब भी ऐसा कुछ होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज देयर इज एन एम्बिग्विटी है ना, रिलेशंस के बीच में एक एम्बिग्विटी है, और जब भी ऐसा कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करने की कोशिश करती है और स्टेट गवर्नमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देती है. स्टेट गवर्नमेंट उतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देती है कि हम आपके अंडर नहीं है, हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है. ठीक, खासतौर के ऊपर दो पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों, तो ये जो रिएक्शन है ये बड़ा नेचुरल है बहुत. तो दोनों में, सरकारी कमीशन में भी पंची कमीशन में भी रिकमेंडेशन थी कि टाइमलाइन हो, क्लियर हो, इतने दिनों के अंदर बिल पास हो जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी. जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज एनिमोसिटी बिटवीन दीज टू, है ना, दे शुड रन हैंड बाय हैंड. The state central government and state government, they should run hand by hand. They should not no competition between these two bodies, है ना. But still the point is that due to the politics, the competition is there and some tensions are there, and categorically ऐसा होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी और पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंशन. तो एस्पेक्ट्स क्या है इसके अंदर? लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी strengthens the state assembly's power and independence, accountability, mandate, time bound decision for the governor and president. Judicial oversight क्या कहता है? Reasserts court's role in upholding constitutional duties. और पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? प्रिवेंट्स इंडेफिनेट डिलेज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड इनिशिएटिव. ध्यान रखो, जब कहीं पर भी कुछ होगा, कोई कुछ क्लैरिटी नहीं होगी चीजों की, दैट केस, हर केस में सुप्रीम कोर्ट जो है आ सकता है. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज सेड दैट प्रेसिडेंट, इवन द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया. He is highest in rank, he is the head of the state, but he also comes under the definition of the constitution. So it means, as we have discussed what we discuss in Indian polity section, that who is the supreme in India, that is constitution, and president also comes under the definition of constitution, and what the constitution is, what the judges says. ठीक, तो जो भी जज कहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है. The importance of reasoned decision making क्या है? President like governors cannot withhold assent arbitrarily. तो arbitrarily अपना assent नहीं दे सकते, क्योंकि ultimately they are under the system, they are under the constitution. It means they are not above the constitution. They have to work within the time frame of the constitution, or they have to work within the limits of constitution. So because Indian constitution has you can say restricted restricted powers of all three organs, that is legislative, executive and judiciary, and similarly the power of judiciaries, they are also under the definition of the constitution, and constitution means what the Supreme Court says, what the judges of India says. So every decision must be backed by the specific and recorded reason, promoting transparency and accountability. You have to give reasons why you have not passed the bill. And conclusion क्या है? Supreme Court ruling in Article 201 closed the constitutional loophole. तो एक constitutional loophole था जिसमें Supreme Court
ने उस लूप होल को बंद कर दिया जहां पर गवर्नर बिल को पास करता था, प्रेसिडेंट उसको पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए या डिसएडवांटेजेस के लिए उसको बिल को होल्ड कर लेता था। तो ये लूप होल खत्म हो गया। प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस हैंड इन हैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे मूव हैंड इन हैंड, तो दे वर्क हैंड इन हैंड, तो इसका मतलब दोनों साथ मिलके चलेंगे। तो एंड उसके बाद अल्टीमेटली द पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट तो एक अलग एस्पेक्ट रह गया था ना, दैट इज नॉट अ सिंगल बॉडी, दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल। तो अल्टीमेटली हु विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर कोई बिल पास हो जाना चाहिए हम हमारी स्टेट के अंदर जिसमें हम रहते हैं, मान लो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई टेंशन है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हमारा ही है ना। अगर कोई बिल स्टेट गवर्नमेंट पास कराना चाहती है तो अल्टीमेटली दे आर आंसरेबल, दे आर आंसरेबल टू अस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर वो स्टेट काम नहीं करेगी तो पहले उसके हमें जवाब देना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि है ना ये सरकार दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अगर पास कराते अच्छा करें तो, बुरा करें तो, बाकी अगली गवर्नमेंट आएगी तो देख लेगी। प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंश्योर्स टाइमली गवर्नेंस, reinforces the rule of law in center-state relations. It is milestone in India's constitutional jurisprudence, allowing executive discretion and democratic responsibility. तो ऐसा बिल पास हो जाने से क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगे, प्लस लोगों का बेनिफिट होगा, प्लस डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, लोगों का डेमोक्रेसी में बिलीव बढ़ेगा, और उसके साथ साथ हमारा जो हाईएस्ट रैंक के ऊपर जो प्रेसिडेंट बैठा है उसको लेके भी लोगों के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें आएंगी।